Dear students, today we are going to discuss about the role playing and simulation. When we are talking about the role playing, then the role playing is most important part of the teaching learning methods. It is a teaching methods to teach the adults. एडल्ट लर्नर्स के लिए रोल प्लेइंग मेथड बहुत ही यूजफुल मेथड्स होता है. रोल प्लेइंग एज अ लर्निंग स्ट्रैटेजी के रूप में हम देखते हैं. रोल प्लेइंग को जब हम लर्निंग स्ट्रैटेजी के रूप में देखते हैं तो कैसे देखते हैं? रोल प्लेइंग इज एन effective learning method for adult education because it increases learning retention, provides hands-on training, and enables better teamwork and communication. Also, it's fun. Adults learn more when they have fun while learning. These facts describe the benefits of role playing and how to implement a role playing training session. Benefits of role playing are: role playing encourages hands on training. A role play puts staff directly into situations that they will face in the real world. Training becomes hands-on and encourages application of knowledge more effectively than handouts, presentation, or videotapes. Nursing staff can, as for in nursing department, nursing staff can practice clinical skills, communication strategy, or problem-solving techniques to help them improve resident care, service, and interactions. Second one is it enables brainstorming and team building. When there is a large group watching and participating in the role playing session, everyone can brainstorm ideas to resolve conflicts or give ideas. Role play exercises also help develop conflict resolution, team efficiency, and trust building skills. It increases empathy and tolerance. When employees in a role play session act as a resident or caregiver या caretaker, they can see the situation from another vantage point, which will increase their empathy and tolerance. It's evaluate new techniques without risk. One of the biggest benefits of role play is that there is low risk of injury to residents. The role play team can try to solve situations and see the results instantly. There is no need to worry about hurting a resident when doing a bathing role play scenario or resident transfer scenario. There may also be more than one solution for a situation. It analyzes problems from various perspectives. An effective role play session can show various solutions to a problem. The facilitator can present situation from multiple points of view such as resident, co-worker, or caregiver, often seeing something from a new perspective leads
to a learning opportunity. It encourages employees' self-confidence. Participating in role-playing and simulation training increase an employee's self-confidence because employees will already have gone through the situation in training. They can act more confidently, especially in an emergencies. Trainees can also be better emotionally prepared for challenging events. Low cost training. Role play training is a fast, inexpensive training method that can be performed almost anywhere with few training materials or props. Steps to implementing a role playing लर्निंग सेशन। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो रोल प्लेइंग के मेथड्स के कौन कौन से बेनिफिट्स है। वहीं हम जब इसके स्टेप्स की बात करते हैं कि रोल प्लेइंग मेथड्स को कंडक्ट कैसे किया जाए, हाउ टू कंडक्ट एन इफेक्टिव रोल प्लेइंग सेशन फॉर एडल्ट लर्नर्स, or we can say in another words, how to conduct a role playing and simulation sessions for adult learners, ताकि एडल्ट लर्नर्स अधिक से अधिक सीख सके और उसका जो लर्निंग रिटेंशन है वो 70% और मोर देन 70% रहे। तो इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो किया जाना चाहिए। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि स्टेप्स टू इम्प्लीमेंटिंग अ रोल प्लेइंग लर्निंग सेशन और सिमुलेशन सेशंस। फर्स्ट वन इज यूज everyday examples and situations. Select a situation to teach. The situation should be relevant and similar to situations that students will encounter in their everyday work. Some examples include caring for agitated residents, assessing residents' needs, dealing with angry family members, caring for a person who is dying, और handling residents' falls। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो एवरीडे एग्जांपल्स और सिचुएशंस है, जैसे कोई हैंग आउट करते हैं या किसी के मन में सुसाइड की भावनाएं आती है, तो इस तरीके से जो उसके डेली लाइफ सिचुएशंस से जो प्रॉब्लम्स है या जो सिचुएशंस है उस सिचुएशंस के रिलेटेड हम एक सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं और पहले सेलेक्ट करते हैं। दैट मीन्स कि आइडेंटिफाई अ सिचुएशंस, आइडेंटिफाई टू सेलेक्ट अ प्रॉब्लम। दैट मीन्स या और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, टू हैंडलिंग या टू डील विद द एडल्ट्स। देन सेकेंड पॉइंट, summarize the role play situation and clarify the objectives. Have an outline for the situation and know what the outcomes might be. It may help to have a rehearsal meeting to discuss what roles everyone should play. Clearly state the goals of the session. Then हम ये डिस्कस करते हैं कि जो रोल प्ले हमें देना है, रोल प्ले जो निभाएंगे, उसके लिए हम सबसे पहले रिहर्सल कर लेंगे कि जिसका जो रोल है वो अपने रोल को बखूबी निभा रहा है या नहीं, क्या उस रोल के अकॉर्डिंग वो फिट है या नहीं, क्या जो मैसेज हम पास करना चाह रहे हैं, जो देना चाह रहे हैं, मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, क्या सेम मैसेज कन्वे हो रहा है या नहीं। इन सब चीजों के लिए सबसे पहले हम उसे रिहर्सल कर लेंगे। जो एग्जैक्ट मीटिंग है हमारा, उससे पहले उसमें डिस्कस करने से पहले उसे रिहर्सल कर लें। एंड देन हम ये देखेंगे कि जो हमारा गोल्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है,
उसको क्लैरिफाई कर रहा है या नहीं. देन थर्ड वन इज चूज एक्टर्स और एक्सेप्ट द वॉलेंटियर्स. Select actors before the session, but it may be more effective to have volunteers. If there are volunteers, be sure to give them time to understand the scenario and get into their roles. As for यदि हम किसी को किसी सिचुएशंस के लिए रोल प्ले का मेथड दे रहे हैं, एज फॉर ड्रामाटाइजेशन के लिए, ड्रामा करने के लिए, तो सबसे पहले जो एक्टर्स या एक्ट्रेस है उसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है हमारा, वो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए हम या तो सबसे पहले वॉलंटियर रूप से कि जो अपने मन से अपनी इच्छा से उसमें सम्मिलित हो सकते हैं. यदि वॉलंटियर रूप से मिलते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उसका वह इंथुजियास्टिक है, वह उत्सुक है उस काम को करने के लिए, वह अपना फुल एफर्ट देगा उस काम को करने के लिए और सीखेगा. यदि ऐसे सिचुएशंस में जो वॉलंटियर रूप से नहीं मिलते हैं, देन हमें सिलेक्ट करना चाहिए कि किस रोल के लिए कौन सा एडल्ट लर्नर सुटेबल है. देन उसे सेलेक्ट करके उसे हम उस सिनारियो के बारे में, उस सिचुएशंस के बारे में बताते हैं, और फिट बैठता है या नहीं वो फिर हम देखते हैं. तो सबसे उसके बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्ट एक्टर्स बिफोर द सेशन. सेशन कंडक्ट करने से पहले हम एक्टर्स का सिलेक्शन करते हैं. देन आफ्टर दैट फैसिलिटेट द रोल प्ले सिचुएशंस. फिर उसके बाद हम जो रोल प्ले का जो सिचुएशंस है उसके बारे में हम उसे फैसिलिटेट करते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस देते हैं, हर एक छोटी छोटी बातों को माइन्यूटली उसे ऑब्जर्व करवाते हैं और उसके बारे में उसे बताते हैं. दैट मीन्स कि एक्ट एज ए फैसिलिटेटर to jump start the session and keep the action moving along. Do not let the action go on too long. Stop the session when momentum begins to slow down, especially if in an employee gets stuck or gets out of character. Step in for a time out and discuss the action so far. This helps the role players take a breath and get back into the character. जब हम उसे रोल प्ले के सिचुएशंस के बारे में फैसिलिटेट कर देते हैं, उसके बाद यदि वह अपने कैरेक्टर से डेविएट होता है तो हम उसे उसी समय स्टॉप करते हैं एंड देन उसे हम अवेयर करते हैं कि आप अपने रोल जो सिचुएशंस है उससे डेविएट हो रहे हैं. गेट बैक इनटू द कैरेक्टर, और उसे अपने कैरेक्टर्स में आने के लिए बोलते हैं, कहते हैं, और उसे अपने कैरेक्टराइजेशन को का रोल प्ले मॉडल डेवलप करने के लिए कहते हैं. देन मेक इट एक्साइटिंग एंड फन. पार्टिसिपेंट्स टेंड्स टू रिमेंबर अ पॉजिटिव एंड फन ट्रेनिंग सेशन. इफ पॉसिबल ट्राई टू यूज सिंपल costumes or props. Encourage a good laugh. और चूंकि इसे एक्साइटिंग और फन करने के लिए, बनाने के लिए, जो रोल प्ले सिचुएशंस जिस तरीके की डिमांड करते हैं, कॉस्ट्यूम के, ड्रेस के लिए, मेकअप के लिए, उन सब चीजों के लिए हम उसे इनकरेज करते हैं कि आपका जो रोल है, जो सिचुएशंस है, उसके अकॉर्डिंग आपका ड्रेसअप भी होना चाहिए. सपोज करते हैं यदि आप तो एक ओल्ड मैन की भूमिका अदा करनी है तो आपको ओल्ड मैन जैसा दिखना होगा, उसके जैसा आपका कस्ट्यूम होना चाहिए. या फिर किसी रीजन, एरिया या कल्चर या फोक या ऐसे कोई लोकगीत है या जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं तो उसके जो ड्रेसेस है उस ड्रेस को पहनने की बात की जाती है ताकि उस ड्रेस को पहनकर आप उसके एक्चुअल सिनारियो को आप प्रेजेंट कर सकें. पॉज और रिवाइंड द एक्शन. एट अ क्रूशियल पॉइंट पॉज द एक्शन एंड टास्क आस्क द ग्रुप क्वेश्चंस अबाउट व्हाट्स
happening. Some staff tend to want to answer all of the question, so make sure to call on the quiet employees for their input. Also, rewind the action to try out another solution and see what happens. Then next, create an unexpected situations. Pause the action and create a brand new or unexpected situation. For example, make the role players switch roles or invite a different employee to replace an existing one. Or you can insert a crisis situation and see how the actors react. Obviously, जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस होते हैं उसके लिए हम वैसा सिचुएशंस देते हैं, या फिर कोई न्यू सिचुएशंस में आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, आपका बिहेवियर कैसा होगा, इस तरीके से उसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उसके लिए तैयार करते हैं, उसके उसके जो रोल्स है उसको स्विच करने के लिए हम बोलते हैं. देन यूज टीम रोल प्लेइंग. If there is a large class, use team role playing where two or more teams act out the same situation. The facilitator can compare the different approaches and lead the class in an open discussion. And after that, open discussion session conduct करते हैं. When finished with praise group and debrief. When the role play is complete, the entire team should discuss what happened and see if there were alternative scenario possible. Ask the class what aspect of the training could be applied to their actual work. जब वो सेशन फिनिश्ड हो जाता है तो उस ग्रुप की प्रशंसा करते हैं, फिर उसे डीब्रीफिंग करते हैं कि इसमें कहाँ क्या कमी रह गई या फिर उसमें क्या क्या अच्छाइयां थी. तो सबसे पहले उस ग्रुप की प्रशंसा में हम ये करते हैं कि उसमें क्या क्या अच्छाइयां थी, इस सिचुएशंस के लिए जो बेस्ट पार्ट था उसे इलाबरेट करते हैं, या फिर उस संदर्भ में उस ग्रुप से ही और ऑडियंस से सबसे पूछते हैं कि इसमें क्या क्या इसमें से जो बेनिफिशियल पार्ट था वो क्या क्या था. फिर देन हम उसमें ये पूछते हैं इसमें डिमेरिट्स कहाँ रह गए, फिर डिमेरिट्स के बारे में हम उनसे पूछते हैं. फिर उसके बाद ये पूछते हैं कि क्या इसके लिए कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सकता है, क्या इसके लिए अल्टरनेटिव सिनारियो पॉसिबल है. यदि अल्टरनेटिव सिनारियो पॉसिबल है तो उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ताकि जो हमारे सामने जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सके. तो इस तरीके से हम उस ग्रुप जब फाइनल हो जाता है तो उस ग्रुप की प्रशंसा करते हैं, डिब्रीफिंग करते हैं और देन फिर अनदर सिचुएशंस क्रिएट करते हैं और उसके लिए फिर रोल प्ले मेथड को यूटिलाइज करते हैं. देन आस्क फॉर फीडबैक एंड असेस परफॉर्मेंस. आस्क फॉर फीडबैक एंड गेट evaluation to see how the group enjoyed the session. कि ग्रुप कैसे इस सेशन को एंजॉय किया उसके बारे में फीडबैक लेते हैं और परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं, पूछते हैं. असेस बोथ इंडिविजुअल and a team performance. After the session, consider what went well and what did not work. Think of other role-playing situation and improve the existing one for another training sessions. तो इस तरीके से हम another training session के लिए फिर जैसे अब एज ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम इस रोल प्लेइंग मेथड को कैसे कंडक्ट करेंगे, तो इसे हम एक साइकिल के रूप में ले सकते हैं कि सबसे पहले हम वैसा एक सिचुएशंस प्रोवाइड करें कि उस सिचुएशंस क्या है, फिर उस सिचुएशंस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि आइडेंटिफाई द सिचुएशन. जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक को हमें बच्चों को सिखाना है, लर्न कराना है, उस टॉपिक्स के रिलेटेड या रिगार्डिंग
सिचुएशंस को सबसे पहले ऑब्जर्व करें, फिर समराइज करें कि इसके लिए रोल प्ले सिचुएशंस किस तरीके से कंडक्ट किए जा सकते हैं, इसे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसको सीखने के बाद या आफ्टर दैट इस रोल प्ले को करने के बाद वो क्या सीखेंगे, कोर्स आउटकम्स क्या होंगे, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के या पर्टिकुलर कंटेंट के आउटकम्स क्या होंगे। तो कंटेंट आउटकम्स देखते हैं, फिर देन हम उसमें क्लास में से एडल्ट लर्नर में से कुछ लर्नर्स को एक्टर्स के रूप में सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर उसमें से वॉलंटियर जो अपने आप से काम करने को इच्छुक होते हैं उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। देन उसे उस सिनारियो के बारे में, उस सिचुएशंस के बारे में फैसिलिटेट करते हैं। फिर इसे एक्साइटिंग बनाने के लिए वो जिस बैकग्राउंड से, जिस सिचुएशन से जो प्रॉब्लम्स है वो फिट बैठता है, उसके रिगार्डिंग जो कस्ट्यूम है, मेकअप है, उन सब चीजों को बोलते हैं कि वो करे और फिर उसको रोल प्ले में लेकर आए। फिर पॉज और रिवाइंड द एक्शन के कहीं कहीं पे यदि वो गलती करते हैं, यदि डेविएट होते हैं तो वहां पे पॉज करते हैं, फिर उस एक्शंस को बोलते हैं कि रोको और फिर से इसे पुनः करो। फिर उसमें कुछ नया सिचुएशंस ऐड करते हैं कि यदि आप ये सिचुएशन कर रहे हो और इस सिचुएशन में कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आएंगे तो उस समय आपके क्या बिहेवियर्स होंगे, उससे एक्ट करने की बात की जाती है। फिर यूज टीम रोल प्लेइंग, फिर आफ्टर दैट कि टीम का रोल प्लेइंग क्या होगा, रोल प्लेइंग वेयर टू और मोर टीम्स एक्ट आउट द सेम सिचुएशंस, कि दो टीम, अनदर टीम है और दूसरी टीम है, वो ऐसी सेम सिचुएशंस में किस तरीके से रिएक्ट करेगी। फिर आफ्टर दैट जब वो रोल प्ले मेथड्स खत्म हो जाता है, फाइनलाइज हो जाता है, हम एक्ट कर देते हैं, तो फिर उसके बाद हर फिनिश होने के बाद हम उस ग्रुप की प्रशंसा करते हैं, फिर डिब्रीफिंग करते हैं कि कहाँ पे क्या कमी रह गई, फिर उनसे फीडबैक लेते हैं एंड उसके जो परफॉर्मेंसेज है उसको असेस करते हैं और फिर अनदर रोल प्ले सिचुएशंस के लिए मूव ऑन करते हैं। दैट मीन्स इसे कंक्लूड कर सकते हैं, दस कंक्लूड दैट the directors or teachers of staff development or director of the education should be well informed of the principles of adult education. The role playing and standard in service should incorporate these principles. Relying on videotapes to meet the in-service requirements for staff is not an effective educational approach. Send the manager in charge of education to classes if they need training regarding how adults learn. After education sessions and role plays, champions and should go out on the units with the staffs and have them immediately practice what they learn. Finally, the education schedule should be driven by the committee and the data they are monitoring. तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो रोल प्ले मेथड्स है या सिमुलेशंस है उसको किस तरीके से कंडक्ट करना चाहिए, रोल प्ले मेथड्स क्या होता है, तो इस तरीके से एडल्ट लर्नर्स जो सीखते हैं तो अधिकतम सीखते हैं। Thus, we can conclude that the role playing and simulations may be learning acts out scenarios to practice skills and behaviors. Its advantages are it enhances engagement, provides practical experiences, and develops empathy. And its consideration is must be well designed to ensure realism and relevancy of the content subjects. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यदि एडल्ट लर्नर्स को रोल प्लेइंग एंड सिमुलेशन मेथड से सिखाया जाए, वैसे सिनारियो उनके सामने प्रेजेंट किया जाए और उसके बिहाफ पे उसको लर्न कराया जाए, तो जो एडल्ट लर्नर है वो अधिकतम सीखेंगे। और जो लर्निंग पिरामिड की जो बात करते हैं उसमें जो 70% की बात करते हैं और मोर देन 70% लर्निंग रिटेंशन की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली
जो एडल्ट लर्नर है वो मोर देन 70% लर्न कर पाएंगे और लर्निंग रिटेंशन रहेगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।